Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9 subject Gujarati, પૂરક વચન ચેપ્ટર 3 ઉપમન્યુ. એમનો લેખક છે નાનાભાઈ ભટ્ટ. નાનાભાઈ ભટ્ટનું જન્મ ઈસવીસન 1882માં થયું હતું અને તેમનું અવસાન ઈસવીસન 1961માં થયું હતું. નાનાભાઈ ભટ્ટનું નામ નૃસિંહ પ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ હતું. તેઓ ભાવનગર જિલ્લાના પછે ગામના વતની હતા. ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજના અધ્યાપક પદેથી રાજીનામું આપી તેમણે દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી ભવન નામની સંસ્થા સ્થાપી. સોનગઢ પાસેના આંબલા ગામે નઈ તાલીમ આધારિત ગ્રામ કેળવણીની નૂતન પ્રયોગ રૂપે ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ નામની લોકશાળા સ્થાપી. આ પ્રયોગે ગુજરાતમાં ગ્રામ કેળવણીમાં મોટી ક્રાંતિ થઈ. તે પછી સમગ્ર ભારતમાં ખ્યાતનામ બનેલી લોકભારતી સણોસરા સંસ્થાની સ્થાપના કરી. ભારત સરકારે તેઓને પદ્મશ્રીના ખિતાબથી નવાજ્યા હતા. તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિના અણમોલ વારસાનો પરિચય કરાવતા સંખ્યાબંધ પુસ્તકો લખ્યા છે. રામાયણના પાત્રો, મહાભારતના પાત્રો, હિન્દુ ધર્મની આખ્યાયિકો, એક દો ભગવત કથાઓ તેમજ દૃષ્ટાંત કથાઓ એ એમના મુખ્ય પ્રેરક પુસ્તક છે. તેમણે કેળવણી ધર્મ વગેરે વિશે પણ ચિંતનાત્મક નિબંધો લખ્યા છે. ઘડતર અને ચડતર નામે તેમણે પોતાની આત્મકથા પણ આપી છે. આ કથામાં ધૌમ્ય ઋષિ શિષ્ય ઉપમન્યુનું ધરાપણું દૂર કરવા અને પોતાના શિષ્યને પરમ વિધાનો અધિકારી બનાવવા માટે પોતે કેવી કસોટી કરે છે એ બાબતનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેજસ્વી હોવા છતાં ઉપમન્યુ પોતાના આ દોષને કારણે ગુરુની પાસેથી પરમ વિદ્યાની દીક્ષા પામી શકતો ન હતો. ઉપમન્યુને છેવટે આંધળા થવાનો માઠો અનુભવ થતાં તેને પોતાની ભૂલ સમજાય છે. ઋષિ પ્રસન્ન થઈને પછી શિષ્યને દીક્ષા આપે છે. ધૌમ્ય ઋષિ આંગણમાં પાટ પર મૃગચર્મ પથારી આડા પડ્યા છે. પડખે પાટ પર બેઠા તેમની પત્ની સમાધિના કટકા આપે છે. આશ્રમ ખાતો શાંત છે ને બધા શિષ્યો સૂઈ ગયા છે. जो धौम्य ऋषि जो है उनके आंगन में जो है वो पथारी पे आने पड़े हैं. पड़खे पाट पर बैठा इनकी पत्नी जो है समाधि का कटका कापे છે. आश्रम आँखों शांत છે ने सारे विद्यार्थी जो है वो क्या है वो सो गए हैं. शिष्य सो गए हैं. મારા મનમાં એક વાત ઘણા વખતથી ઘોડિયા કરે છે કે મને થયું આજે તમને પૂછ્યું. ऋषि पत्नी बोली. अब ऋषि पत्नी के मन में जो है एक बात जो है वो बहुत दिन पहले से घूम रही थी. वो सोचती कि आज तो मैं इनसे पूछूंगी. ज़रूर पूछो. एवी तो सी बात છે વળી, ધૌમ્ય બોલ્યા. अब वो गुरु ऋषि कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, पूछो. આ ઉપમન્યુ તમારો ખાસ શિષ્ય છે. શાસ્ત્રો ભણવામાં બહુ તેજસ્વી છે. યોગમાં ખૂબ આગળ વધેલો છે. 3 કલાક સમાધિ કરે છે. આમ છતાં તમે તેને જ્ઞાનની આખરી દીક્ષા કેમ નથી આપતા? ऋषि पत्नी बोलिया. अब ऋषि की जो पत्नी वो बोलती हैं
कि उपमन्यु जो है तुम्हारे खास शिष्य है। ऋषि की पत्नी बोलती है कि आप उपमन्यु तो आपका बहुत खास शिष्य है, शास्त्र भणवा में बहुत तेजस्वी है, यानी शास्त्र पढ़ने में बहुत तेजस्वी है और योग में खूब आगड़ है और योग भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, बहुत उसमें भी आगड़ है और 3-3 कलाक जो है समाधि करता है। और आम छતાં તમે તેને ज्ञानની आखिरी दीक्षा કેમ નથી, यानी इस तरह आपने उसको ज्ञान की जो आखिरी दीक्षा है वो कब अभी तक क्यों नहीं सिखाए। તમારી વાત તો જાણે સાચી જ છે, આટલા ટૂંકા ગાળામાં શાસ્ત્ર તથા જીવનના ઊંડા અર્થોને પામી ગયો હોય તેઓ આ એક शिष्य આવ્યો છે, ऋषिए કહ્યું। ऋषि कहते कि तुम्हारी बात तो सच है कि इतने कम समय में शास्त्र का ज्ञान सीखना और जीवन के ऊंडा जो अर्थ होते हैं वो सीख जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोले, और ऐसा ये एक ही शिष्य है। तो પછી તમે શા માટે તેને જ્ઞાનની છેલ્લી દીક્ષા નથી આપતા, ऋषिની पत्नी बोलिया। तो ऋषि की पत्नी कहती है कि आप उससे लास्ट की जो ज्ञान की जो दीक्षा है वो क्यों नहीं सिखा रहे हो, તેનું કારણ છે, તેનું કોઈ રીઝન है, શું क्या રીઝન है। ઉપમન્યુ બધી રીતે તૈયાર છે પણ તેનો એક दोस्त તેને નડે છે कि तो उपमन्यु जो है हर तरह से वो रेडी है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम जो है वो बीच में आ रही है। ये दोस्त तेनी भूख, वो कमी जो है वो क्या है, उसकी भूख, तेनी अन्न वासना। भूमिए जरा गंभीर थी कहूँ, यानी ऋषि जो थोड़ा सीरियस होके कहते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको भूख बर्दाश्त नहीं है। ઉપમન્યુને અન્નની વાસના છે તો બાપાની મહેનત છોડીને અહીં ભીખ માંગવા તે શું કામ આવે। कि उपमन्यु को खाने की ज़्यादा चाहे तो वो अपने बाप की मिलकत छोड़ के यहाँ पे भीख क्यों मांग रहा है। તમે જાણો છો, તમે ના જાણો, तुम नहीं जानती, परंतु हूँ ये पारखी सकूँ, लेकिन मैं जो है इसको समझ सका हूँ। તે પોતે જ પણ જાણો છે, હું પારખી શકું છું, मैं समझ रहा हूँ। તે પોતે પણ આ જાણે છે, वो खुद भी ये जानता है, परंतु ये लाचार है। એ તેનો ઉછેરનો દોષ છે। આ દોષ તેનો અંતરનો એકાદ ખૂણામાં ભરાઈ ગયો છે, તે નીકળી જશે ત્યારે મને તેને દીક્ષા આપવી નહીં પડે, દીક્ષા તેની અંદરથી આપોઆપ ફૂટી નીકળશે। धौम्य पत्नी ने समझाता कहूँ, यानी जो ऋषि जो है वो अपनी पति को समझाते हुए कहते हैं कि उसके अंदर जो है एक कमी है, और वो कमी क्या है, भूख की, कि वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहते तुम नहीं जानती, लेकिन मैं समझ चुका हूँ, और वो भी ये अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो बहुत लाचार है और यही उसकी कमी है और यही कमी जो है उसके अंदर एक कहीं खूने में भरी हुई है। जिस दिन ये कमी उसके मन से निकल जाएगी, उसके अंतरात्मा से निकल जाएगी, तो वो अपने आप ही जो दीक्षा है वो सीख जाएगा। મને ફોસલાવી નહીં, મારે તો નાનો ભાઈ કે પુત્ર જે ગળે તે ઉપમન્યુ છે, તમે તેને બધું ભણાવ્યો તો તેનો આટલા દોષ दूर ना करो। नाराज़ થઈ ऋषि पत्नी बोलिया। ऋषि पत्नी बोलती है कि मैंने फुसलाओ नहीं, यानी मुझे बहलाओ नहीं, मारे तो नाना भाई के पुत्र जो गड़े थे उपमन्यु छे, यानी मेरे छोटे भाई का जो पुत्र है वो उपमन्यु है, और तुमने उसको सब कुछ सिखाए हो, तो क्या ये इतनी सी कमी आप दूर नहीं कर सकते हो। नाराज़ होकर कहती हैं ये तो एना अंतर में थी एक दिवस आप में दूर थशे। कहते ये तो एक दिन उसके अंदर से खुद ही वो दूर हो जाएगी, परंतु तेनी चावी तो तमे तेने बताओ। ऋषि पत्नी हट पकड़ी। अब ऋषि पत्नी जो है वो जिद कर लेती हैं कि लेकिन उसकी चाबी तो तुम बताओ। ठीक, जाओ, तुम्हारी इच्छा प्रमाणे थई जशे। ऋषिए धरपत आपी। ऋषि जो है वो कहते हैं कि हाँ जाओ, ठीक है,
आपकी इच्छा प्रमाणे जो है वो हो जाएगा। सवार पड़ी, आश्रम जागी गयो। सुबह हुई, आश्रम के जो लोग हैं वो उठ गए। उपमन्यु આજે ગાયો ચરાવવા વનમાં તારે જવાનું છે, મોડું ના કરતો, गुरुए કહ્યું कहते हैं कि आज जो है गाय को चराने के लिए जंगल में तुमको जाना होगा, देर नहीं करना। जी महाराज। हाँ, ઉપમન્યુએ કહ્યું। हाँ, આ તો ગુરુની આજ્ઞા। ઉપમન્યુનું શરીરનું થનગન્યું ઉઠ્યું, હાથમાં જાણે ડાંગ આવી ગઈને પગ વનની કેડીઓ ચાલવા लाग्યા। घटाधार वृक्षों, लीला खेतरों, किलकिलाते पक्षियों उपमन्यु ने देखवा लाग्या। अब गुरु जी ने जो उनको आदेश दिए वो आदेश मान के जो है उपमन्यु जो है वो गायों को क्या कहते हैं जंगल में चराने के लिए निकल गया। अब वहाँ जाके जो वहाँ का जो दृश्य था, माहौल था कि घटाधार, खूब घने वृक्ष थे, लीला खेतरों थे और पक्षियों की आवाज़ थी, ये सब जो है वो उपमन्यु को देखने को मिला। ત્યાં વનમાં ખાઈ શું? તેના અંતરમાંથી કોઈકે પૂછ્યું। अब उसके मन में ये बात होती है कि मैं यहाँ पे खाऊंगा क्या। वહેલા ઉઠી, નહાઈ, भिक्षा लावी। उपमन्युએ निकलता पहला निरांते जमी लीधું। वो जल्दी सुबह उठा, नहाया धोया और भिक्षा मांग के जो है जो उसको मिला वो उसको खा लिया। साजे उपमन्यु गायों ने चरावी पाछो આવ્યો ने गुरुની સામે हाथ जोड़ी ऊभा રહ્યો। शाम को जो है गाय चरा के जो है वो वापस आया और गुरु के सामने जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। केम उपमन्यु જઈ આવ્યો હે, પણ આજે તે ખાવાનું શું કર્યું? गुरुए पूछ्યું। गुरु पूछते हैं कि उपमन्यु आप होकर आ गए, आज तुमको खाने का क्या सोचे, क्या करे खाने के लिए? હું વહેલા પરવરી भिक्षा मांगी लावी, जमीने गएलो। उपमन्यु કહ્યું। उपमन्यु कहता है कि मैं सुबह जल्दी उठा और भिक्षा मांग के लाया और उसको खा लिया। उपमन्यु गुरुजी ने जણાવ્યા વગર ભિક્ષાન ખાય છે, તે આ પવિત્ર અન્ન ખાય છે। કાલે સવારે પણ તારે જ ગાયો ચરાવવા જવાનું છે, ધૌમ્ય સમજાવ્યો। अब गुरुजी कहते हैं कि मुझे जानकारी दिए बिना तुम भिक्षा मांगने चले गए। बोले ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, वो अपवित्र अन्न है। बोले कल सुबह भी तुमको गाय चराने के लिए जाना होगा। बीजी सवारे उपमन्यु वहेली भिक्षा लई આવ્યો ने गुरु ने चढ़ने मूकी। गुरुए तो बद्दी पोताने माटे राखी लीधा। अब दूसरी सवार जो है उपमन्यु सुबह जल्दी उठता है और जाके भिक्षा लेके आता है और जो भिक्षा लेके आता है वो गुरु के चरणों में रख देता है। अब गुरु जो है सारी भिक्षा जो है वो अपने लिए रख लेते हैं। उपमन्यु बीजी वार गामમાં ગયો ने भिक्षा लई આવ્યો, પછી નિરાંતે જમી ગાયોને હાંકતો પડ્યો વનમાં। उपमन्यु जो है वो दूसरी बार भिक्षा लेने गया और भिक्षा लेकर आया और ला के उसको खाया और फिर उसके बाद जो गायों को हकालता हुआ जंगल में चला गया। सांजे पाछो આવ્યો उपमन्यु गुरु सामे आवीने ऊभो। शाम को वो वापस आता है और गुरु के सामने आके खड़ा हो जाता है। बेटा આવી ગયો, આજે ખાવાનું શું કર્યું? गुरु पूछियो। गुरु पूछते हैं कि बेटा तुम आ गए, आज खाने के लिए तुमने क्या करे? गुरुजी આજે બીજી વાર भिक्षा લઈ આવ્યો ને જમ્યો। उपमन्यु કહ્યું। उपमन्यु कहता है कि मैंने दूसरी बार भिक्षा लेने गया था और वो लाके मैंने खा लिया। उपमन्यु તે આ ठीक ना કર્યો। શિષ્યોએ દિવસમાં એક જ વાર भिक्षा લેવાય। કાલે પણ તારે જ ગાયો ચરાવવા જવાનું છે, ગોમ્યો बोलियो। अब उनके ऋषि जो है वो कहते हैं कि शिष्यों को सिर्फ दिन में एक ही बार भिक्षा लेने जाने का। बोले तुमने ये ठीक नहीं करे, कल भी तुमको गाय चराने के लिए जाना होगा। જેવી આપની આજ્ઞા, જેવી આપकी આજ્ઞા। ત્રીજી સવારે ઉપમન્યુ ગામમાં જઈ भिक्षा લઈ આવ્યો। બધી भिक्षा गुरुને ચરણે ધરી કંઈ ખાધા વગર તે ગાયો લઈ વનમાં ગયો। अब तीसरे दिन जो है वो सुबह उठे और उपमन्यु सुबह उठे और गांव में भिक्षा लेने के लिए गए और जो भी भिक्षा में उनको मिला वो लेके आकर गुरु के चरणों में रख दिया और खुद कुछ भी नहीं खाए और खाए बिना वो गाय को चराने के लिए वन में यानी जंगल में चले गए। घटू
घाटू जंगल, बपोरे पर तड़कों के गर्मी नहीं। अब घना जंगल था, दोपहर में भी वहाँ पे उसको तड़कों के गर्मी नहीं थी। गायो सीढ़ी छाए में बैठी वगोड़ो छे, यानी गाय जो है छाए में बैठी है। उपमन्यु झाड़ पर चढ़ी सूतो छे, उपमन्यु झाड़ पे चढ़ के सो रहा है। ते घड़ी गीत गाए छे और गीत भी गा रहा था। तो वड़ी पक्षियों ने बुलावे छे, तो कभी पक्षियों को बुलाता है। घड़ीक वांसड़ी वगाड़े तो कभी वांसड़ी वगाड़ता है। तो वड़ी वन्नो सौंदर्य जुए तो कभी जो जंगल की जो सौंदर्य यानी जो खूबसूरती है वो देखता है। परंतु पहली भूख, लेकिन सबसे पहले भूख ते तो वारे वारे सामी आवे। उपमन्यु पेट बेसी गयो ने आँखों ऊंडी गई। अब उसको भूख लगने लगी, वो पेट पकड़ के बैठ गया और आंखें बाहर आने लगी भूख के मारे। आ भूख वेठिए सोए लाभ, आ गायोનું दूध પી લઉં તેમાં કંઈ ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ નથી। ઉપમન્યુને વિચાર આવ્યો તે ઝાડ પરથી નીચે ઉતર્યા, તેણે ગાયોનું दूध पी भूख समावी। अब उसको भूख लगी थी कि आखिर मैं भूख का क्या करूं। बोले ऐसा करता हूं कि जो मैं ये गाय है मैं इसका दूध पी लेता हूं। फिर सोचता है कि कहीं अगर मैं ऐसा करा तो कहीं गुरु की जो अज्ञान है कहीं वो भंग ना हो जाए। पर फिर वो ये सोचता है और झाड़ पे से उतरता है और जो गाय जो रहती है उनका दूध वो पी लेता है। तीजी सांझ पड़ी, उपमन्यु गुरु पासे आव्यो। अब तीसरी शाम को जो है उपमन्यु जो गुरु के पास गए। बेटा आज सेना थी पेट भरियो। गुरु पूछते हैं कि बेटा आज तुमने किससे पेट भरा। गायों ना दूध थी, उपमन्यु कहूँ। उपमन्यु कहते हैं कि गाय के दूध से। उपमन्यु ए दूध तो वाछड़ा माटे तथा यज्ञ होम माटे छे, આપણે એ दूध ना पीवाय। આવતીકાલે પણ ગાયો સાથે તારે જવાનું છે, गुरुए आज्ञा करी। अब गुरु आज्ञा करते हैं, पहले पूछते हैं कि आज तुमने अपना पेट किससे भरे। तो उपमन्यु जवाब देते हैं कि मैंने गाय का दूध पीकर अपना पेट भरा। तो कहते हैं कि बोले ये तुमने गलत करे। गाय का दूध जो है वो वाछड़ा के लिए होता है और यज्ञ के लिए होता है। तुमने इस तरह से करे, ये गलत है। बोले आती कल यानी कल जो है फिर से तुमको गाय चराने के लिए जाना होगा। गुरुजी उनको आज्ञा देते हैं। चौथी सवारे गायो आगळ ने उपमन्यु पाछळ चालिया वन में। गुरु मारी परीक्षा करवा मांगे छे आजे कई। चौथी सवारे जो है गाय आगे थी, उपमन्यु पीछे चल रहा था जंगल में और सोचता है कि गुरु जो है गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आजे कहीं खाऊं नहीं, एक दिवस ना खाऊं तो कहीं मरी जाऊं। चालता चालता उपमन्यु विचारतो हतो, कहता है कि आज तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, अगर एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा। चलते चलते ये सोचते रहता है। जंगल में उपमन्यु झाड़ पर चढ़ी गीतो गायो ने वांसड़ी वगाड़ी। अब बद्दू क्या सूदी चाले। अब जंगल में जो है उपमन्यु झाड़ पे चढ़ के गीत गाता है तो कहीं वांसड़ी बजाता है। आखिर ये कब तक चलता। गायों ने घास चरती जोईने तेनी भूख जागी। अब गाय जो है घास चर रही थी तो उसको देख के उसको भूख लगी। झाड़ पड़ती थे तो उतरिया, झाड़ पे से वो उतरे तेरे एक वाछड़ा ने छोड़ियो और एक वो गाय के बच्चे को छोड़िया। ते पोतानी माँ ने धावा लाग्यो। वाछड़ू धावे एटले तेना मोए फीड़ आवे। आ फीड़ हाथ वड़े लई उपमन्यु खावा लाग्यो। આવી રીતે 8-10 વાછરાના ફીડથી પોતાની ભૂખ સમાવી સાંજે તે ગાયોને લઈ આશ્રમે આવ્યા। अब जो है वो गाय के जो फीड से उन्होंने खाकर अपनी भूख मिटाई। 8-10 इस तरह वाछड़ा के फीड लेके उन्होंने खा के अपनी भूख मिटाई और शाम को जो है गायों को लेकर आश्रम वापस आ गए। आज दूध नहीं पीधू ने, गुरुए पूछ्યું। गुरु पूछते कि आज तो दूध नहीं पिए ना। जी ना, दूध नहीं पीधू, मत घावता वाछड़ा ने मोए वड़ता फीड खाधा छे। उपमन्यु कहूँ। कहते कि बोले आज तो मैंने दूध नहीं पिया, लेकिन हाँ जो वाछड़ा के मुँह से जो फीड होता है वो मैंने खाया। उपमन्यु ए पण आपड़ती ना लेवाय, सत्व तो बधुं ज तेमां होय छे। काले पण तू गायों साथे जजे घूम्यो बोलिया। अब कहते हैं कि ये भी तुमको नहीं खाना चाहिए, बोले कल फिर तुमको गायों के साथ वन में जाना होगा।
જંગલનો 5મો દિવસ ઉપમન્યુ ઝાડ પરથી ઘડીક સૂએ ને ઘડીક मंत्रों बोले ने घड़ीक झाड़ना पान तोड़ी पानी में फेंके। अब जंगल में जो इसका 5वां दिन था, उपमन्यु झाड़ पे जाके चढ़ जाता है, कभी वहाँ पे सोता है तो कभी गीत गाता है तो कभी मंत्र बोलता है तो कभी झाड़ के पत्ते तोड़ के उसको पानी में फेंकता है। इस तरह वो अपना टाइम निकालता है। सांझ पड़ी, सांझ हो जाती, गायों आश्रम तरफ बढ़ी। गाय जो है वो आश्रम की तरफ रवाना होती है। पाछड़ उपन्यु છે और गायों के पीछे उपन्यु है। तेने मन में थયું, उनके मन में होता है कि आज मैं भूख पर विजय मेळव्यो। कहते हैं कि आज मैंने भूख पे विजय प्राप्त करी। मजाना આગળ ગાયો છે ને આગળ ગાયો છે ને પાછળ ઉપન્યુ। થોડું ચાલ્યા ત્યાં रस्तानी बाजू में खास मजाना थोर दिखाया। अब आगे गाय चल रही थी, पीछे उपन्यु चल रहा था। अब रास्ते में जो है उसको एक खास मजा का थोर दिखाई दिया। थोर पर सरस मजाना झींडवा पर उपन्यु ने नज़र पड़ी। अब एक उसको थोर दिखाई देता है। अब थोर पे एक मस्त मजा का झींडवा रहता है, उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है। तेनु मन चढ़्યું, उसका मन में होता है, तेना मन में हाँ ना चाले छे, उसके मन में हाँ ना चलता है। ત્યાં तो तेना हाथ में झींडवा पासे पहुँची गया और फिर वो झींडवा के पास पहुँच गया। डाड़ी परती झींडवा छूटा पड़वा लग्या। डाड़ी पे से तो झींडवा जो है वो छूटने लगा अने ત્યાં तो थोरना दूधनी एक शेर उपन्युनी आँख में पड़ी। अब वो थोर की जो दूध रहता है उसकी एक बूंद जो है उपन्यु के आँख में पड़ गई। तेनी दुनिया आँखी अंधकार में बनी गई। अब वो जो है उसकी दुनिया जो है क्या वो अंधकार में हो गई। गायों केड़ी कसूँ दिखाए ज नहीं, गाय केड़ी कुछ दिखाई नहीं देता है। गायों ने खरीओना आवाज़े तेणे चालवा मांड्यो, पण त्यां तो ते पड़ियो ए मोटा बढ़िया में कुआं में। सिर्फ उसको गायों की चलने की आवाज़ आ रही थी और फिर वो वहाँ पे एक कुआं रहता है बड़ा सा, उसमें वो गिर जाता है। हवे तेने पोतानी मर्यादानुं साचन भान थयुं। अब जो है उसको अपनी मर्यादा का उसको भान यानी एहसास होता है। गुरुए तेने आटलू कह्युं। गुरु कहते हैं छतां ते भूख ना रोकी सक्यो तो तेने पछतावो थयो। कहते कि तुमने अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसके लिए उसको पछतावा हुआ। ते बोलियो गुरु मने माफ़ करो, आवता जन्मे मने तमे ज गुरु मरजो। गुरु पत्नी ना आवते जन्मे तमारे पेट अवतार आपजो। कहते गुरु मुझे माफ़ करना और अगले जन्म में मुझे आपके यहाँ ही आप पैदा होना है, मुझे वहाँ आपके यहाँ ही जन्म लेना है। आश्रम में होम वेळा थई गयो। आवी गई पर उपन्यो ना आव्यो ने घोमियो ने चिंता थई। थोड़ा शिष्यों ने लई गुरु निकलिया उपन्यु शोधवा। अब आश्रम में जो है थोड़ा फिक्र होने लगी कि उपन्यु अभी तक आया नहीं है, चिंता होने लगती है। और गुरु जो है थोड़े शिष्यों को लेके जो है वो वन में निकल जाता है उनको ढूंढने के लिए। उपमन्यु बेटा गुरु शाद पड़ता जाए छे। शाद यानी आवाज़। उपमन्यु वो उनके गुरु जो है उपमन्यु को आवाज़ देते हुए जाते रहते हैं कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। गुरुजी हूँ तो अहीं छूँ, भाड़िया में उपमन्यु ने जवाब आप्यो। अब गुरुजी की आवाज़ सुन के वो आवाज़ देता है कि गुरुजी मैं तो यहाँ पे हूँ। गुरु ने शिष्यों कुआं पासे आव्या। गुरु और शिष्य जो है कुआं के पास आए। उपमन्यु तू अंदर केम करता पड़ियो। अब कहते उपमन्यु तू अंदर क्यों गिरा हुआ है। गुरुए चिंताथी पूछ्યું। गुरु जो है पूछते हैं मारा पापे गुरुजी हूँ अंधड़ो थयूं छूँ। कहते ये मेरे पाप है, मैं अंधा हो गया हूँ। अंधड़ो केवी रीते, किस तरह से तुम अंधे हो गए। उपमन्यु जे बन्यु हतुं ते कह्युं ने गुरुनी क्षमा मांगी। यानी उपमन्यु ने सारी बात जो है गुरु को बताया और फिर उसके बाद गुरु से माफ़ी मांगते हैं। गुरु ने खूब दुख थयुं। तेओ कहे बेटा मुंजाइश नहीं, तू देवोनो वेद अश्विनी कुमारनु स्मरण कर, तेओ तारी आँखों सारी करसे। अब गुरु को जो उसके दुख का एहसास होता है, वो कहता है बेटा तुम परेशान मत हो, तुम जो है देव के वेद जो है अश्विन कुमार को स्मरण करो, तप करो तो वो आपकी आँख जो है वो लौटा देंगे। उपमन्यु अश्विन कुमार ने स्मरण करियो। उस उपमन्यु जो है अश्विन कुमार का स्मरण करता है, नहीं तप करता है। कुमारों तरत हाजिर थया।
કુમારો વહાં પે હાજર હો જાતે હે। તેમણે આંખો સજી કરવા એક औषधि ખાવા માટે ઉપમન્યુને આપી છે। यानी आँख अच्छी करने के लिए उनको एक औषधि यानी दवा खाने के लिए कहते हैं। हूँ कहीं खाइस नहीं, उपमन्यु बोलियो। कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उपमन्यु बोलता है। देखता था होए तो आ दवा खावी पड़े, कुमारू बोलिया। अब अश्विन कुमार कहता है कि अगर तुमको फिर से देखना है तो ये दवा तो तुमको खानी पड़ेगी। देखता थवाए तो ठीक, ना थवाए तो ठीक, કંઈક નહીં, પરંતુ હું ગુરુની આજ્ઞા વગર મોંમાં કંઈ જ નહીં મૂકું, ઉપમન્યુ પોતાનો નિરાધાર જણાવ્યા। अब कहते हैं कि मुझे चाहे दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना मुंह में एक दाना भी नहीं रखूँगा। गुरुए ધૌમ્ય તરત આજ્ઞા આપીને ઉપમન્યુને દવા લીધી। થોડી વારમાં તેને બધું દેખવા लाग्यो। ते कुआंमांथी बाहर आव्या ने गुरु शिष्य भेटिया। अब गुरु जो है क्या कहते हैं उपमन्यु को आदेश देते हैं और फिर उसके बाद वो दवा खाता है और दवा खाने के बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है वो उसको दिखने लगता है और फिर वो कुएं में से बाहर आता है और अपने गुरु और शिष्य की दोनों की मुलाकात होती है। सो तरत आश्रम तरफ वड़िया। आश्रम में पहुँचिया तो त्या झंपे ऋषि पत्नी राह जोता बेटा हता। उपमन्युए तेमना खोड़ामां माथुं मूक्युं। ऋषि पत्नीए हेतथी तेनुं माथुं सूंघ्युं। उन लोग फिर तुरंत जो है आश्रम पहुँचे और आश्रम में उनकी ऋषि की जो पत्नी थी वो उनका इंतज़ार कर रही थी। उपमन्यु वहाँ पे आए और ऋषि पत्नी के गोद में अपना सिर रख के वो लेट जाते हैं और ऋषि पत्नी जो है उनके सर पे हाथ फिराती हैं। पोतानी पण कुटी पासे आवी गई। पगे लागता उपमन्यु धौम्य कहे और फिर वो अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, बेटा उपमन्यु तारो अंतेवास आजे पूरो थाय छे। कहते हैं कि आज तुम्हारा जो आखिरी दीक्षा थी वो पूरी हो गई, तने भड़ियामां ज ज्ञान मળી गयुं। कहते जो तुम कुएं में गिरे थे वहीं पे तुमको ज्ञान मिल गया। तारा माँ बाप तारी राह जोता हसे, जो जा तारू कल्याण थाओ। कहते कि तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हारी इंतज़ार देख रहे हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। यानी इस पाठ में बताया है कि इंसान को अपनी नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यहाँ पे लेसन ने बताया है भूख। तो भूख के ऊपर जैसे कि हम और भी सब बातें ले सकते हैं कि यहाँ पे वो लड़के को भूख बर्दाश्त नहीं थी। भूख बर्दाश्त ना होने के कारण जो है वो अंधा हो जाता है। यानी उसको एक लालच, यानी बस उसको भूख रहती है कि बस मैं कुछ ना कुछ करके खाऊं। इसी तरह हमारी लाइफ में जो है हमको हमारी जो फीलिंग्स नफ्स होती है उस पर हमको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है इसके बाद हम कैसा आंसर देखेंगे। ओके, નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત ઉત્તર લખો। ધૌમ્ય ઋષિના પત્નીના મનમાં શી વાત ઘોળિયા કરતી હતી? તો એમનો ઉત્તર છે, ધૌમ્ય ઋષિના પત્નીના મનમાં આ વાત ઘોળિયા કરતી હતી કે ઉપમન્યુ ધૌમ્ય ઋષિનો ખાસ શિષ્ય હતો। શાસ્ત્રો ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી હતો, યોગમાં ખૂબ જ આગળ વધેલો હતો, 3 કલાક સમાધિ કરતો હતો। આમ છતાં ધૌમ્ય ઋષિ તેને આખરી દીક્ષા આપતા ન હતા। નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન। ધૌમ્ય ઋષિના પત્નીના મનમાં શી વાત ઘોળિયા કરતી હતી? તો એમનો ઉત્તર છે, ધૌમ્ય ઋષિના પત્નીના મનમાં આ વાત ઘોળિયા કરતી હતી। ઉપમન્યુ ધૌમ્ય ઋષિનો ખાસ શિષ્ય હતો, શાસ્ત્રો ભણવામાં ખૂબ તેજસ્વી હતો, યોગમાં ખૂબ આગળ વધેલો હતો, 3 કલાકે સમાધિ કરતો હતો। આમ છતાં ધૌમ્ય ઋષિ તેને આખરી દીક્ષા આપતા ન હતા। નીચેના પ્રશ્નના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો। ધૌમ્ય ઋષિ ઉપમન્યુને આખરી દીક્ષા કેમ આપતા ન હતા? તો એમનો ઉત્તર છે, ધૌમ્ય ઋષિ ઉપમન્યુને આખરી દીક્ષા આપતા ન હતા કારણ કે તે ખાવ ધરું હતો, તેનામાં અન્નવાસના હતી। નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન। ધૌમ્ય ઋષિ ઉપમન્યુને આખરી દીક્ષા કેમ ન આપતા હતા? તો એમનો ઉત્તર છે, ધૌમ્ય ऋषि ઉપમન્યુને આખરી દીક્ષા આપતા ન હતા કારણ કે તે ખાવ ધરો હતો, તેનામાં અન્નવાસના હતી। નંબર 2, ઉપમન્યુ અંધળો શી રીતે થયો? તો એમનો ઉત્તર છે,
ઉપમન્યુ 5મા દિવસે ગાયો ચરાવીને આશ્રમ તરફ આવતો હતો ત્યારે તેને રસ્તાની બાજુમાં થોર પર ઝીંડવા દેખાયા. તેના હાથ ઝીંડવા પાસે પહોંચી ગયા. ત્યાં થોરના દૂધની એક શેડ ઉપમન્યુની આંખોમાં પડી અને તે આંધળો થઈ ગયો. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. ઉપમન્યુ આંધળો સી રીતે થયો? તેમનો ઉત્તર છે ઉપમન્યુ 5મા દિવસે ગાયો ચરાવીને આશ્રમ તરફ આવતો હતો ત્યારે તેને રસ્તાની બાજુમાં થોર પર ઝીંડવા દેખાયા. તેના હાથ ઝીંડવા પાસે પહોંચી ગયા. ત્યાં થોરના દૂધની એક શેડ ઉપમન્યુની આંખમાં પડી અને તે આંધળા થઈ ગયો. નાવ થર્ડ ક્વેશ્ચન. ઉપમન્યુ અશ્વિન કુમારોએ આંખો સજીવ કરવા માટે આપેલી ઔષધિ કેમ ન ખાધી? તો એમનો ઉત્તર છે ઉપમન્યુ અશ્વિન કુમારોએ આંખો સજી કરવા માટે આપેલી ઔષધિ ન ખાધી કારણ કે એણે નિરાદર કર્યો હતો કે હું ગુરુની આજ્ઞા વગર મોંમાં કંઈ જ નહીં મૂકું. નાવ થર્ડ ક્વેશ્ચન. ઉપમન્યુએ અશ્વિન કુમારોએ આંખો સજી કરવા માટે આપેલી ઔષધિ કેમ ન ખાધી? તો એમનો ઉત્તર છે ઉપમન્યુએ અશ્વિન કુમારોએ આંખી સજી કરવા માટે આપેલી ઔષધિ ન ખાધી કારણ કે એણે નિરાદર કર્યો હતો કે હું ગુરુની આજ્ઞા વગર મોંમાં કંઈ જ નહીં મૂકું. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 3. નીચેના પ્રશ્નોના માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 1. ઉપમન્યુની અન્નવાસના માટે કોનો દોષ છે? ઓપ્શન એ ગુરુપત્નીનો, ઓપ્શન બી અન્ય શિષ્યોનો, ઓપ્શન સી તેનો ઉછેરનો અને ઓપ્શન ડી તેની માતાનો. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન સી તેનો ઉછેરનો. નંબર 2. ગુરુજીએ ઉપમન્યુને કયું કામ સોંપ્યું? ઓપ્શન એ ગાયો ચરાવવા વનમાં જવાનું, ઓપ્શન બી ઘેર ઘેર જઈ ભિક્ષા માંગવાનું, ઓપ્શન સી આશ્રમની સફાઈ કરવાનું, ઓપ્શન ડી ઋષિ પત્નીને ઘરકામમાં મદદ કરવાનું. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન એ ગાયો ચરાવવા વનમાં જવાનું. ક્વેશ્ચન નંબર 3. ઉપમન્યુ ગુરુને જણાવ્યા વગર જે ભિક્ષાન ખાય છે તે આ પવિત્ર અન્ન ખાય છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તે ઓપ્શન એ ઋષિ પત્ની, ઓપ્શન બી ધૌમ્ય ઋષિ, ઓપ્શન સી નાનાભાઈ ભટ્ટ અને ઓપ્શન સી ઉપમન્યુના માતા. નંબર 4. ચોથા દિવસે ઉપમન્યુ પોતાની ભૂખ કેવી રીતે સમાવી? ઓપ્શન એ ગાયોના દૂધ પીને, ઓપ્શન બી વનમાં ફાળો ખાઈને, ઓપ્શન સી 8-10 વાછરાના મોં પરના દૂધના ફીણથી અને ઓપ્શન ડી ભિક્ષાન ખાઈને. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન સી 8-10 વાછરાના મોં પરના દૂધના ફીણથી. નંબર 5. અંત થયા પછી ઉપમન્યુ કેવી રીતે ચાલ્યો? ઓપ્શન એ લાકડીના સહારે, ઓપ્શન બી મિત્રના સહારે, ઓપ્શન બી મંત્રના સહારે, ઓપ્શન ડી ગાયોની ખરીઓના આવાજે. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન ડી ગાયોની ખરીના આવાજે. નંબર 6. શિશુએ દિવસમાં એક જ વાર ભિક્ષા લેવાય. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? ઓપ્શન બી ઋષિ પત્ની, ઓપ્શન બી કુમારો, ઓપ્શન સી ઉપમન્યુ, ઓપ્શન ડી ધૌમ્ય ઋષિ. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન ડી ધૌમ્ય ઋષિ. રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. ઋષિઓ દિવસમાં એક જ વાર ભિક્ષા લેવાય. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આ વાક્ય ધૌમ્ય ઋષિ બોલે છે. મારે તો નાનો ભાઈ કે પુત્ર જે ગણો તે ઉપમન્યુ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? ઓપ્શન એ ધૌમ્ય ઋષિ, ઓપ્શન બી દ્રોણ ગુરુ, ઓપ્શન સી ઋષિ પત્ની, ઓપ્શન ડી ઉપમન્યુ. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન સી ઋષિ પત્ની. નાવ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. મારે તો નાના ભાઈ કે પુત્ર જે ગણે તે ઉપમન્યુ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આ વાક્ય ઋષિ પત્ની બોલે છે. બેટા ઉપમન્યુ તારો અંતેવાસ આજે પૂરા થાય છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો ઓપ્શન એ ધૌમ્ય ઋષિ, ઓપ્શન બી દ્રોણગુરુ, ઓપ્શન સી ઋષિ પત્ની, ઓપ્શન ડી કુમારો. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન એ ધૌમ્ય ઋષિ. તો નાવ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. બેટા ઉપમન્યુ તારો અંતેવાસ આજે પૂરો થાય છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આ વાક્ય ધૌમ્ય ઋષિ બોલે છે. તો
तो यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन उपमन्यु जो है कंप्लीट होता है। ओके बाय।